Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, inshallah, today we are going to study the amazing story about a man who just sell a kebab in Delhi. Okay, and we in this chapter we are gonna discuss about the recipe of the kebab and the behavior of that man who sells that kebab. Okay, everything his what famous recipe and delicious what kebab. Okay, so I think you guys are very what interesting. I mean, yeah, just feeling very what well to just hear this story. Well, we are gonna start. जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे के नीचे पटरी पर जहां और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, शाम के 5-6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे और रात के 12-1 बजे तक कबाब बेचते थे। उनका नाम मुझे नहीं मालूम, चाचा कबाबी कहलाते थे। सो जामा मस्जिद फुलवारी वाले बोले तो यानी हम ऐसा बोलते हैं यानी समटाइम्स अगर हमको स्ट्रीट का नेम मालूम ना हो तो इफ़ वी डोंट नो द एनी स्ट्रीट नेम द नेम ऑफ दैट स्ट्रीट, सो व्हाट वी विल से स्ट्रीट there are many shop of what flowers or sometimes fruits, so we will just what वो हम ऐसा बोलेगा, निस्बत करेगा उसकी तरफ। ओके, तो हम उसकी तरफ निस्बत करके बोलेंगे वो फुलवारी वाले ऐसा। तो हम फॉर एग्जांपल किसी का फादर का नेम हमको याद नहीं, हम क्या बोलेगा, हाँ वो बिजनेस है ना जिसको, ऐसा है ना। तो जामा मस्जिद के फुलवारी वाले चबूतरे बोले तो द सरफेस एरिया विच इज़ लिटिल बिट हायर और अपर फ्रॉम द लैंड। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, चबूतरा। ओके, फॉर एग्जांपल इन अवर what palms ground there is a big like a stage, that area is little bit from our ground, so there is a little bit it is little bit higher up from the ground, so at the same there was a chabutra. Okay, so उनके नीचे पटरी बोले तो the slice piece of the wood. ओके, द स्लाइस पीस ऑफ द वुड। ओके, और कोई दुकानदार नहीं बैठता था, so it means that the shop was made with what the slice of the wood. Okay, so there was no any shopkeeper to just put his shop. Okay, तो शाम के 5-6 बजे एक कबाबी साहब दुकान लगाया करते थे। एट दैट प्लेस 5 or 6 o'clock, a kebab shop, there will be a kebab shop. Okay, so he will just there is a person who will just what put his kebab shop at there and till the night 12 or 1 o'clock. Okay, and उनका नाम मुझे नहीं, I don't know his name, but everybody calls him that kebab chacha kababi. ओके, चचा कबाबी कहलाते थे। एवरीबडी वंस कॉल हिम चचा कबाबी। ओके, एंड नाउ ही इज सेइंग दैट अबाउट हिज बर्थ एंड डेथ, दैट ही वाज born after the 1857 and he just died before 1947. चचा कबाबी गदर 1857 के 10-12 साल बाद पैदा हुएंगे। इट्स नॉट अ करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ दैट और द करेक्ट द डेथ डेट, बट इट इज़ ओनली जस्ट प्रेडिक्शन। ओके, के बाद हुए होंगे, इट्स नॉट कन्फर्म। ओके, फैन 1947 से चंद साल कबल 1947 से चंद साल कबल इंतकाल कर गए। ओके, दिल्ली की सीख मीन्स स्टिक विच इज़ मेड बाय स्टील। ओके, स्टील स्टिक। ओके, on that stick we will just on that steel stick that shopkeeper will just put on that stick some little pieces of that meat, and it will just and he will just put that on fire to just to just to give a little heat of that fire.
ओके। और गोले के कबाब मशहूर है, ओके। एंड द गोले की कबाब मीन्स the shape of the goal kebab, or we can say this there are some name of that kebab, okay. So that these two kebab were very famous, okay, the seekh kebab and the gole ki kebab. So chacha kababi दिल्ली के मुमताज़ कबाबी थे, and he was the very what मुमताज़ mean no one was like him in that field. There were many of the shops of kebab, but the kebab of the chacha kababi was amazing, okay. What is too delicious, okay, kebab बनाने के एतबार से भी और उनकी तबीयत के एतबार से भी. Now why he said that that chacha kababi is very mumtaz, because according to the motive was because of his delicious recipe and good behavior also. Anokhi means amazing, or the amazing habit which he has, okay. According to that also he is very mumtaz. कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था. Actually he was very proud, we can he just feel very proud, means not just in that good proud means ऐसा बोलते हैं ना हम, there is a between fakhr and takabbur, okay. We always should be a proud, फख्र करना है हमको, तकब्बुर नहीं करना है, ओके. बट कबाब बनाने के कमाल पर उन्हें बड़ा घमंड था. सो एक्चुअली है घमंड बोले तो तकब्बुर. और तबीयत का अनोखापन तो उससे आया है कि वो अपने लिए वो जगह इंतखाब की है जहाँ गाहक को आना हो तो जामा मस्जिद के जनूबी दरवाज़े की तरफ. और तबीयत का अनोखापन मीन्स द अमेजिंग हैबिट विच ही हैज़ इज़ द वॉज वेरी आया बोले तो ज़ाहिर, बिमाना ज़ाहिर, आया ज़ाहिर. And he also selected his that place for his marketing of kebab, from where he just selected इंतखाब, he just selected that area जहाँ गाहक बोले तो customer, okay, और buyer you can say. गाहक बोले तो customer. So whoever will just enter in the Jama Masjid, so he will just also means that shop was near to Jama Masjid, okay. So whoever will just pass away from that masjid, and that area was very populated and very rush area. So that was a market area, okay. So and in market area there will be very rush, and the peoples will be feeling to just and having somewhat fun of that delicious kebab. So they will just go for head that, okay. फिर दसियों के कबाब को छोड़ कर आए हैं, मीन्स चचा कबाबी का दुकान का था, वेर ही वॉज द लोकेशन ऑफ दैट शॉप वॉज मीन्स दसियों कबाबियों को छोड़ कबाबियों मीन्स जो कबाब बनाने वाला होता है, हम उसको बोलते हैं कबाबियों, ओके. कबाब बनाने वाला, हु जस्ट मेक ए कबाब विसेस दैट कबाबियों. सो हमारा चाचा कबाबी का जो शॉप किधर था, मीन्स 10 ऐसा लोगो था उनका बाद इनका शॉप था, ओके. एक 11 बरस की लड़की आग की ताव रखने के घर से हर वक्त पंखा हाथ में पकड़े खड़ी रहती थी. एंड देयर वाज a 11 years old girl who will just give some air from that handmade fan to that fire, just okay. ताव मीन्स गरम रखने के लिए, ओके. फिर पंखा मीन्स फैन, मीन्स हैंडमेड फैन होता है ना, तो ही विल जस्ट कीप दैट फैन इन हिज हैंड एंड ही विल डू लाइक दैट. गालिबन उनकी बेटी थी. द राइटर इज सेइंग दैट गालिबन शी वॉज हिज डॉटर, ओके. ज़रा ताव कमो बेश हुआ, चचा कबाबी का पारा चढ़ा. इफ दैट हीट कम्स वेरी लो और हाई, सो चचा कबाबी विल बी वेरी एंगर, ओके. पारा चढ़ना
एक मुहावरा है, पारा चढ़ना बोले तो टू बिकम एंग्री सडनली, ओके। गुस्सा नाक पर रखा रहता है, मीन्स हमेशा ऑलवेज चचा कबाबी विल बी इन एंगर because he never compromise with his kebab or his with what this business, okay, that's why he हमेशा क्या होता है, गुस्सा हमेशा उसके नाक पे रहता है. If there will be any what mistake in his what kebab, so it will be very शेमफुल हिम, दैट्स वाई उनका नाक में हमेशा गुस्सा होता है. लेकिन क्या मजाल बोलो तो बेमाना हिम्मत, लेकिन क्या मजाल जो ज़ुबान से बेहुदा लफ्ज़ निकल जाए. उनको चचा कबाबी को बहुत गुस्सा ज़रूर आता था, बट कभी भी अपना ज़ुबान से, अपना टंग से कभी क्या बैड वर्ड्स नहीं बोलता था. हमेशा क्या गुस्सा होता था, लेकिन गुस्से में भी क्या कंट्रोल करके थोड़ा कुछ अच्छा यानी कुछ नसीहत देता था. गुस्से में भी वो क्या करता था, कुछ नसीहत देता था, ओके. फिर ग्राहकों को मीन्स कस्टमर्स को क्या होता था, बारी के करके कबाब देते थे. अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारा कस्टमर्स कभी क्या लाइन में होता है ना, ऐसे ही जस्ट भी रश होकर, तो जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट मिलेगा. अगर आप उनके यहाँ अव्वल मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं, इफ़ यू आर जस्ट इफ़ यू आर जस्ट कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन हिज शॉप और उनकी तबीयत से वाकिफ़ नहीं है, एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट हिज वॉट हैबिट, और दूसरे ग्राहकों की निस्बत आपकी हैसियत बुलंद है, एंड यू आर जस्ट एंड योर स्टेटस इज़ मोर वैल्यूबल अकॉर्डिंग टू अदर्स कस्टमर्स, so and you are just wore some very what nice dresses and coat and pant, and you just come from tanga bole to that what like auto rickshaw, or we can say that टांगा हम उसको बोलते हैं. हॉर्स होगा ना, हॉर्स ये हॉर्स का पीछे एक कार का एक पुराना ज़माने में एशियन पीरियड में ऐसा होता था ना, हॉर्स का पीछे ऐसा होता. तो हॉर्स का जो कार होता था मीन्स टांगा बोलते थे. या तो फिर इफ़ यू आर जस्ट कमिंग फ्रॉम योर मोटरसाइकिल, सो एंड यू आर जस्ट सेइंग रोक कर कबाब खरीदने उतर पड़े, आपने ख्याल किया मुझे तरजीह दी जानी चाहिए. यू आर जस्ट थिंकिंग दैट यू शुड बी प्रिफर्ड फ्रॉम अदर्स, ओके. आपने यू आर जस्ट थिंकिंग दैट यू आई शुड क्या आई हैव टू जस्ट व्हाट प्रिफर्ड बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम माई मोटरसाइकिल, आई हैव जस्ट वोर सम वेरी व्हाट फंटास्टिक और व्हाट फैबुलस ड्रेसेस, nice dresses, fashionable, so you are thinking that, so I think your thought is what wrong. हाथ बढ़ाया, you are just what forwarding your hands and say you just forward your money and saying that 1.5 रुपये के कबाब ज़रा जल्दी, please give me some kebab of only 1.5 rupees, okay, but hurry. After Chacha Kababi listen this hurry means jaldi, so he becomes very anger. जल्दी का लफ्ज़ सुनते ही चचा कबाबी का मिजाज बिगड़ जाएगा. After he just if he will hear that जल्दी, so he becomes very anger, he becomes very angry, okay. मिजाज बिगड़ना मीन्स तबीयत बिगड़ना मीन्स क्या उनका एक अबनॉर्मल होना, या तो फिर कुछ इरिटेटिंग सा फील होना, ओके. तो व्हाट चचा कबाबी विल रिप्लाई, ही विल रिप्लाई, वो रुपए वापस कर देंगे और कहेंगे ही विल जस्ट रिटर्न योर मनी यू बैक, ही विल जस्ट रिटर्न योर मनी टू यू, एंड ही विल से हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए, इफ़ यू आर इन हरी सो यू मे गो टू अनदर शॉप, ओके. So where we are, हाँ, हुजूर जल्दी है तो किसी और से ले लीजिए. नाउ एक रोज़ वन डे एक ज़रा जिंदा दिल से शख्स चचा कबाबी से उलझ गए ना मीन्स हम क्या करना, हम उसको बोलते हैं. वन डे ए मैन वॉज वॉट उलझना हम बोलते हैं, नहीं किसी से बोलते हैं ना, वॉज बिज़ी विद डिस्कशन, क्या ऐसा. तो एक आदमी क्या हुआ, एक दिन चचा कबाबी के साथ क्या उलझ गया, तो उन्होंने चचा कबाबी के इस फिक्रा जड़ दिया. मीन्स आफ्टर ही जस्ट चचा कबाबी सेड इफ़ यू आर इन हरी सो यू मे गो टू अदर शॉप, सो the customer said that भाई
और सही ले लेंगे। अल्लाह ने तुम्हारे कबाब से अल्लाह ने तुम्हारे कबाब से बचाया, ना जाने हज़म होते हैं या कोई आफत ढाते हैं। ही सेइंग आई डोंट माइंड, आई विल जस्ट टेक फ्रॉम अनदर शॉप। अल्लाह जस्ट यानी वो बोलता है कि अल्लाह तुम्हारे कबाब से बचाए, मीन्स he didn't get what from that shop, that's why he just blaming Chacha Kababi that I don't need from your shop, I will just take from another shop. I don't know your kebab will has a good digestion diet or not, is there any problem in your recipe or not, I don't know. कोई आफत बोले तो मुसीबत, okay? Is there any if I will eat your kebab, so I have to face some problem like that, that's why he is saying. तो चचा कबाबी क्या हो कि तिल मिला उठे, तिल मिलाना मीन्स इज़्तरबा बिमाना बेचैन होना या तो फिर गुस्सा के माने में। और कहने लगे हुजूर कबाबों में वो मसाला डालता हूँ जिसे मस्त बाजार पर लथड़े दो तो गल कर गिर पड़े। इट मीन्स दैट मीन्स and Chacha Kababi is saying that he just put some those masala in that kebab which is very, बाजार बोले तो हम ऐसा बोलते हैं, हम पोर्क तो या तो फिर ऐसा बोलते हैं ना भैंसा, ऐसा एकदम गेंडा, ऐसा एकदम अच्छे तरह तंदुरुस्त बीमाना तंदुरुस्त के माने में, ओके? जिसे मस्त बाजार यानी आपसे कोई आपको लड़ने आया तो आपको कोई फाइट करने आया तो आप क्या एकदम हेल्थी होगा, और आपको कोई फाइटिंग करना है तो सामने वाला क्या होगा, गिर पड़ेगा, ओके? तो मेरे कबाबों से आपको तकलीफ़ पहुंच जाए तो अस्पताल का खर्चा दूंगा। इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम बाय ईटिंग माय कबाब, सो आई विल पे द एक्सपेंस ऑफ द हॉस्पिटल एंड योर मेडिसिन ऑल्सो। लेकिन कबाब जल्दी नहीं दे सकता, बट आई विल नेवर गिव यू द कबाब इन हरी, ओके? ओके, जल्दी में कबाब या तो कच्चे रह जाते हैं या जल जाते हैं। इफ आई विल कुक द कबाब इन हरी, सो इट विल बी what कच्चे मीन्स it will not be well cooked, okay? या जल जाते हैं, और sometime it will be burn, और दूसरा गाहकों का हक भी छीनता है। एंड another motive is that दूसरे ग्राहकों का मीन्स अदर कस्टमर्स का क्या होगा, हक जो होगा, जो राइट होता है, मीन्स if they have reached first, तो so they should get first. You have just come late, so you will get late, okay? जो पहले आया है कबाब उसे पहले मिलने चाहिए। Who has just reached first, so they will just get first, okay? फिर वन मोर पैराग्राफ, चचा कबाबी धोस नहीं बर्दाश्त कर सकते। चचा कबाबी ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, धोस मीन्स द एटीट्यूड, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ अदर्स एटीट्यूड्स, ओके? वो अपने उसूल के मुकाबले में ताल्लुकात को भूल जाते हैं, ओके? उसूल according to his rules and regulations, he will just avoid the relations and something also. Even he will never look that you are friend or about your if you are his son or any relative member, so he will never consider about that, okay? अजीज़ और दोस्तों भी उनसे बगैर बारी के कबाब नहीं मिले सकते थे। मीन्स दोज हु आर फ्रेंड एंड और दोज हु आर कमिंग फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, दे शुड ऑल्सो हैव टू टेक कबाब इन लाइन, दे विल नेवर रिसीव बिफोर अदर पीपल, ओके? मीन्स उनसे बगैर बारी के कबाब नहीं ले सकते। मीन्स बगैर बारी मीन्स टू जस्ट रिसीव दैट कबाब विदाउट लाइन, ओके? आप जाए उनको सलाम कीजिए, इफ़ यू वांट टू गो जस्ट डू सलाम, ही विल गिव यू आंसर ऑफ योर सलाम, ओके? वालेकुम सलाम। पानों की डिब्बिया सामने रख दीजिए, जस्ट कीप द बॉक्स ऑफ पान मीन्स एक देयर इज अ ट्रेडिशन आई थिंक सो नॉर्थ, क्या हम नॉर्थ एरिया में ऐसा क्या एक देयर इज़ अ लीफ, ओके?
leaf, and the he will put some what tobacco, and the green, there is a red color what, something like that, the red color paste and white color tuna, say that tuna. And after that it will, there will be somewhat क्या क्या बोलते हैं उसको, there is something else also, I don't know what's that, I never eat that also. So that's a pan, okay. So if you want to keep that, so you should, but he will just eat that pan, betakalluf pan खा लेंगे. Betakalluf means you no need to just to just decorate that pan, or to just to make that pan for him. He will just what to make him by himself, and he will eat. Zarda khud मांग लेंगे, and he will if he wants something zarda, there is a what, something else in pan, like some what yellow color, okay. So he will just ask that by himself, but लेकिन नामुमकिन है कि सलाम या पान से चचा कबाबी पिघल जाए, but it is very impossible that you are just what you are just praise that salam and you give him pan. So it doesn't mean that you will get kebab first, okay. You will get kebab on your time, okay, on your turn, okay. You will not get kebab by just pricing some salam and giving some pan. You will get kebab on your turn, on your time, okay. Kebab bari par hi denge means you will get that pan on your time, okay. So I think today we're gonna enough this. Well, I think this is amazing story. Well, keep it up. If you don't understand any meaning, so you can ask. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.